So welcome all of you guys in this revision class of CMA Final IDT students where we are going to revise input tax credit. A much awaited chapter for all the CMA Final students because this chapter is very important for your examinations and lagbhag 8 to 10 marks का question can come from this chapter because ITC has already always been an important part of chapter in your examinations, so you cannot afford to miss any part of this chapter. So let's start the revision of this ITC chapters, which starts from section number 16 to लेकर section number 21. एक एक करके अपने सेक्शन में आएंगे और एक एक करके अपने रैपिड रिवीजन करेंगे. सबसे पहले सेक्शन 16 बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस टू अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट. यू नो द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स. व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट टैक्स? द इनपुट टैक्स इज द टैक्स व्हिच इज चार्ज्ड ऑन द इनवर्ट सप्लाईज मेड टू अ पर्सन एंड इंक्लूड्स ऑल द टैक्सेस व्हिच इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. जो भी टैक्सेस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे किया जाता है वो भी आपका इनपुट टैक्स होता है. इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो अपना आईजीएसटी पे करते हैं दैट इज आल्सो एन इनपुट टैक्स. So whatever input tax is basically the burden of the tax is ultimately on the person and जो person के ऊपर burden है वो उसके लिए input tax माना जाएगा. And अगर आप उसका credit ले सकते हो तो that is input tax credit. तो first of all we'll revise section 16 eligibility and conditions to avail ITC. What are the eligibility requirements? Next section number 17 will talk about कि how will you apportion the credit. Say for example one common input has been used for both taxable supply and exempt supply, or a common input has been used for business purpose or non-business purpose. तो in that situation how will you apportion the credit? There is rule 42 and 43. आपको याद होगा rule 42 will talk about input and input services का apportionment and rule 43 will talk about capital goods का apportionment. The next part is 17 subsection 5, very important, blocked credits. What are the list of items on which you will not be allowed to claim any ITC? आपको जिसका credit बिल्कुल भी नहीं मिलेगा and that is blocked. Say for example motor vehicles, conveyances, aircraft, vessels, food, cosmetic surgery, life insurance, health insurance, etc. Availability of ITC in special cases, section number 18. Ki what are the special cases where you can avail ITC? Switch over from composition scheme to normal scheme, or coming from exempt status to tax paying status, taking fresh registration or voluntary registration. These are the four instances where you can take ITC in special cases. Or obviously you will also be taught about reversal कि आप ITC reverse कब करोगे. In special cases there will also be a reversal situation. Say for example you have been into tax paying status, now will be switching to exempt status. You were earlier into normal scheme, now you are going into composition scheme. You are liable to take registration, now you are cancelling GST registration, or you are supplying capital goods. तो ये सारे situations में अपने tax payment करते हैं. Section 19 will talk about job work, taking inputs and sending to job worker. How will you claim ITC? And section 20 will talk about manner of distribution of credit by ISD, input service distributor, जिसको compulsory GST में registration लेना पड़ता है under section 20. They will be liable and they will be actually distributing the credits to the recipient of the credit in the on the ratio of turnover in state of all the recipients. And lastly, manner of recovery of excess credit distributed by ISD will be recovered as per demand and recovery proceedings under section 73-74 from the recipient of the credit. तो ये गाइस 6 सेक्शंस मिलाकर अपने को इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर देता है. देयर आर वेरियस रूल्स, यू डोंट हैव टू लर्न ऑल द रूल नंबर्स. There are various rules which are attached to this input tax credit chapter, but we'll start with section number 16 subsection 1. Section 16 subsection 1 will talk about eligibility to take ITC. What are the two basic eligibility requirements to take ITC? Number one, you should be registered in GST. If you are not registered in GST, you cannot take credit. Number two, whatever goods or services you are using it, you should actually use it for the purpose of course or furtherance of business. If you are not using in the course of furtherance of business, that cannot be claimed as input tax credit. Say for example this mobile phone, I have purchased this mobile phone, but this mobile phone I am not using it for business purpose, this is for my personal purpose. I cannot claim ITC on particular this mobile phone. Okay, because it is not used in the course or furtherance of business. There are 5 conditions to claim ITC, section 16 subsection 2, clause A, clause AA, clause B, clause C and clause D. Clause A बोलता है you should have a tax paying document, यानी you should have a tax invoice, or you should have a revised tax invoice, or you should have a bill of entry, or you should have a debit note. There are various tax paying documents on based on which you can claim input tax credit. 16 to B बात करेगा receipt of goods and services. Receipt of goods and services means
unless and until you have not received the goods or received the services, you will not be getting input tax credit. यहाँ पे we had revised bill to ship to model. Sir, what about bill to ship to model? When I say bill to ship to model, I mean that I have billed to a person. I have billed to a person, but uh, actually the goods have not been received. यानी सर आपने बिल टू शिप टू मॉडल, अगर आपको याद होगा, ए हैज इंस्ट्रक्टेड बी टू डिलीवर द प्रोडक्ट टू सी, तो बी इज बिलिंग टू ए and A is billing to C, but actually A has not received the goods. Directly delivered goods have been delivered on behalf of A to C. In this situation, whether A will get the credit, the answer is yes. Deemed to be received, मान लिया जाएगा कि A को goods deemed receive हो चुका है. Similarly, service receivement में भी यही होगा कि B has actually provided the service to C on behalf of A. So it is deemed that A has received the services and A will get the input tax credit. 16(2)(c), whatever tax leviable on that supply has been actually paid to the government, only then only the recipient will get the input tax credit. And lastly, filing of returns. All the returns should be filed by the recipient. Recipient, in order to claim the credit, should file the returns. And one condition which was added in Finance Act 2021 was 16 subsection 2 clause AA. That was inserted through Finance Act 2021, which was what? That, sir, GSTR 2 भी अगर आपको याद होगा, GSTR 2 भी अगर आपको याद होगा, 16 subsection 2 clause AA. Okay. What was that? That invoice which is furnished by the supplier in his GSTR 1 should be communicated to the recipient in GSTR 2A 2B. Yani sir, if the credit has not been shown in my 2B, I cannot claim the credit in that month because my supplier has not furnished that invoice in his GSTR 1. Yani if your supplier has not furnished the invoice in his GSTR 1, that means it will not be communicated in your GSTR 2B, and if it is not communicated in your GSTR 2B, you cannot claim the credit in that particular month. You have to defer the credit until the date when it has been communicated in your GSTR 2B. So this is one of the added condition for claiming input tax credit. So these are the 5 conditions to claim input tax credit. Now further adding to this conditions, there are some specific proviso. First proviso to section 16(2), that if you are receiving the goods in lots or installments, in that situation you will take the credit only once you have received the last lot or the last installment. आपके last lot, last installment के बाद ही आप इसका credit ले सकते हैं. So for example, you are receiving the goods in 5 lots. You cannot take the credit immediately. You have to take the credit on the receipt of the last lot. Last installment के बाद ही आप credit ले सकते हैं. Then आपका बात आता है guys, एक और point, ITC goods received in lots. Then payment made by the recipient to the supplier within 180 days. 180 days के अंदर recipient has to pay to the supplier the entire consideration within 180 days from the date of invoice. If not done, the input tax credit availed on that particular purchase, that has to be reversed by the recipient with interest at the rate of 18% per annum from the date of availing the credit. मतलब जब मैंने credit 180 दिन पहले avail कर लिया, till the date I have increased my output tax liability, उस पीरियड का मुझे 18% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा. नाउ सर, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल हैपन इफ आई पे बैक द कंसिडरेशन आफ्टर रिवर्सिंग द क्रेडिट? यू विल अगेन बी री एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट without any time limit. You know there is a particular time limit to claim ITC, but this restriction will not be applicable when you are re-availing the credit which you have reversed here because you have not paid the consideration within 180 days. This is a rapid revision. Only if you have given your 100% efforts in reading these chapters and revising the concept, आपको ये सारे concepts recall हो जाएंगे. But if you have not done the chapters nicely, आपको कोई भी concept recall नहीं किया जाएगा. ठीक है? तो where you are not able to recall the portion, please, that is your weak point. You should immediately go there and recall and revise all the topics which I have taught you in the classes. Payment of invoice to be made within 30 days. ये हमने already पढ़ लिया सर. अच्छा, ये वाले जो provisions है, ये कुछ कुछ cases में applicable नहीं होगा. 3 situations में applicable नहीं होगा. Reverse charge supplies में applicable नहीं होगा because reverse charge supply में recipient के ऊपर ही liability आती है. दूसरा, schedule 1 supplies के ऊपर applicable नहीं होगा. किसके ऊपर apply नहीं होगा? schedule 1 supplies के ऊपर ये वाले provisions applicable नहीं होंगे because ये schedule 1 supplies में without any consideration होता है. Next, if you remember, value supply हमने 15(2)(b वाला supply पढ़े थे. 15(2)(b supplies what? Payment made to third party by the recipient on behalf of the supplier. Now because in this situation guys we already made the payment to third party, हम payment कभी भी supplier को नहीं करते हैं, तो ये deemed to be paid मान लिया जाएगा because in that situation whatever payment we are making to the third party, that is on behalf of the supplier. So that is why it will be deemed to be paid for this particular purpose of section, and आपको ITC की कोई भी तरह की reversal नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है? Next, very very important, depreciation claimed
on tax component of the cost of capital goods. Please guys, जो बच्चे ये recorded देख रहे हैं, आप लोग के पास ये option रहेगा कि आप इसको rewind करके वापस से देख सकते हो. I have to do a rapid revision, else the purpose of this taking this session will be totally lost. Depreciation claimed on the tax component, very important, ये बच्चे गड़बड़ करते हैं. Capital goods मैंने buy किया, उस पे GST charge हुआ. Now I have two options. I can claim the entire credit of that GST which have been charged on the capital goods, or what can I do? और व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो जीएसटी है उसको मैं कैपिटल गुड्स का कॉस्ट मानूंगा एंड आई विल कैपिटलाइज इट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आई विल क्लेम इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन. यू कैन नॉट डू बोथ. आप जीएसटी का अगर क्रेडिट ले लिए तो आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिए पूरे कॉस्ट पे तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते. सिंपल बात है, ठीक है. तो यू कैन डू एनी ऑफ द थिंग्स. नेक्स्ट 16 सबसेक्शन फॉर टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी. आईटीसी की टाइम लिमिट क्या है क्लेम करने के लिए? टाइम लिमिट टू क्लेम आईटीसी इज नेक्स्ट ईयर का सितंबर मंथ का ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, दैट इज 20th अक्टूबर, और एनुअल रिटर्न का डेट जीएसटीआर 9 का डेट विच एवर इज अर्लियर. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया हुआ है कि सर व्हाट अबाउट डेबिट नोट्स. से फॉर एग्जांपल आई एम इशूइंग अ डेबिट नोट कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ इनवॉइस व्हिच वाज इशूड लास्ट ईयर. तो क्या मुझे डेबिट नोट का डेट का नेक्स्ट ईयर देखना पड़ेगा कि मुझे रेलेवेंट इनवॉइस का डेट का नेक्स्ट ईयर देखना पड़ेगा? तो Finance Act 21 has made an amendment in Finance Act 2020 has made an amendment to this, that no, you have to check the date of the debit note. You don't have to check the date of the corresponding invoice on person to which the debit note was issued. So you have to check the invoice date, you have to check the debit note date of the debit note and date of the invoice will decide कि आपका next year का September month क्या होने वाला है, ठीक है. तो due date of the return of the September of the next financial year to which such invoice or debit note pertains, or date of annual return whichever is eligible. मतलब upper limit to claim ITC क्या है? अगले साल की 20 अक्टूबर, that is the due date of GSTR 3B of the September month, ठीक है सर. Now you just recall one thing that we have already studied, that 180 days वाला जो पेमेंट का कंडीशन था, वहां पे जो अपने रीअवेल करेंगे क्रेडिट ऑन पेमेंट, वहां पे ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगा सर, बिकॉज यहाँ पे आपकी क्रेडिट रिवर्स हुई थी बिकॉज ऑफ पेमेंट. नाउ देयर कैन नॉट बी अ कंडीशन अटैच टू इट कि आपको इस टाइम में पेमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद अगर आप क्रेडिट अवेल करना चाहो तो विदाउट एनी टाइम लिमिट 2 years 3 years 4 years 5 years वॉट एवर द केस में भी आप क्रेडिट ले सकते हो, ठीक है सर. नाउ देर आर टू रूल्स अटैच टू आईटीसी, रूल 86A एंड रूल 86B विच यू हैव टू लर्न. रूल 86A क्या था? रेस्ट्रिक्शंस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लेमिंग प्रोसेस ऑफ आईटीसी थ्रू रिटर्न्स. आप रिटर्न में सेल्फ असेस्ड बेसिस पे यू क्लेम आईटीसी. प्रोविजनल आईटीसी आर बीइंग गिवन टू यू व्हेन यू फाइल योर रिटर्न. जब आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको क्रेडिट मिल जाता है द मोमेंट यू हैव फाइल्ड योर रिटर्न. नाउ दैट क्रेडिट विच यू हैव फाइल्ड, दैट क्रेडिट विच यू हैव टेकन, यू कैन ऑल्सो यूज टू पे योर सेल्फ असेस्ड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी. यह द प्रॉब्लम कम्स. Commissioner has a power, or any officer not below the rank of assistant commissioner, इनके पास power है that they can restrict you to utilize the ITC. I repeat, they can restrict you to utilize the ITC. Basically they will put a restrictions on your credit ledger that you cannot use the credit which you have taken in a particular return pending assessment proceedings, because definitely guys, assessment recovery proceedings will take a lot of time. Before that they can immediately put a restriction upon you that you cannot you cannot use the credits to pay back your tax liability. You have to use cash only to pay back your tax liability. तो यहाँ पे है रूल 86 में कि what are those reasons that when can the commissioner or any officer not below the rank of assistant commissioner can impose this restriction. Number one, if you have taken ITC based on that invoices which is issued by a non-existent supplier, or if that supplier is not conducting a business from his declared place of business, registered place of business, or if you have taken an input, if you have taken a credit based on that invoices which you have not received only, आपने goods receive ही नहीं किया, services receive ही नहीं किया, or tax has been charged which has not been paid to government. Guys, if you know, if you remember, यही तो conditions था जो आपको पढ़ाया गया था 16.2 में, 16.2A, 16.2B, 16.2C, 16.2D. यही सारे कंडीशंस अगर वायलेट करके आपने क्रेडिट लिया तो रूल 86A क्या बोलेगा? योर क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड टू बी यूटिलाइज्ड. दैट कैन बी इम्पोज्ड एज अ restriction. Next, registered person if has availed credit who is himself non-existent or is not conducting any business from the registered place of business, then also his credit can be restricted. Registered person has availed credit not in possession of a tax invoice. उसके पास कोई tax invoice ही नहीं है और उसके basis पे वो credit ले रहा है without any tax invoice, तो he can definitely in his case restrictions can be imposed. Now, can the restrictions can be withdrawn? Yes, restriction can be withdrawn at any point of time if the officer feels that there is no such condition
based on which he can impose the restriction, and maximum validity of restriction is 1 year. एक साल बाद ये डीम टू बी एक्सपायर हो जाएगा, एक साल तक आप उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, एक साल बाद आप उसको आपको रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है गाइस रूल 86B। रूल 86B अगेन टॉक्स अबाउट कि हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट यू कैन यूज from your electronic credit ledger, that is 99%. Your output tax liability का 99% can only be used to pay your taxes through credit ledger, यानी minimum 1% has to be paid in cash, minimum 1% has to be paid in cash, आपको minimum 1% cash में देना पड़ेगा, right guys? तो 99% of tax liability has to be paid, maximum 99 can be paid through ITC, minimum 1% has to be paid in cash, but only in that situation where my value of the taxable supply other than exempt supply and zero rated supply exceeds 50 lakh rupees per month। अगर मेरी किसी भी मंथ में वैल्यू 50 लाख क्रॉस नहीं की तो मुझे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं किया जाएगा। ये प्रोविजन तब अप्लाई किया जाएगा जब मेरी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई other than exempt supply and zero rated supply in a month exceeds 50 lakh rupees। Now sir, again there are few non applicability of this restrictions कि कब ये rule 86 भी applicable नहीं होगा। नंबर वन, if you have already paying income tax more than 1 lakh rupees, अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स पे कर रहे हो इनकम टैक्स एक्ट में इन ईच ऑफ द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, जिसकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट अभी भी एक्सपायर हो चुकी है, मतलब जिसका रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है, आपने उसका उस साल का दोनों साल का आपने रिटर्न में ऑलरेडी 1 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स पे कर दिया है और यू आर क्लेमिंग रिफंड ऑफ मोर देन 1 लाख इन जीएसटी, आप जीएसटी में रिफंड 1-1 लाख रुपए से ज्यादा क्लेम करो, दोनों रिफंड, एक तो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड, एक अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड बिकॉज ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी रेट स्ट्रक्चर और बिकॉज ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, तो वट एवर अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो अगर वो 1 लाख रुपीज से ज्यादा है तो दिस प्रोविजन विल नॉट एप्लीकेबल फॉर यू। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू चेक दिस 1% क्यूमुलेटिवली, क्या, क्योंकि गाइस हो सकता है कि किस पर्टिकुलर मंथ में आपने 20% 30% टैक्स दे दिया कैश में, तो दैट विल डेफिनेटली न्यूट्रलाइज योर टैक्स लायबिलिटी इन कैश फॉर द नेक्स्ट प्रीवियस ईयर, फॉर द नेक्स्ट मंथ्स। तो यहाँ पे आपको जो 1% कंडीशन है वो आपको टोटलिटी में चेक करनी पड़ेगी रैदर देन अ पर्टिकुलर मंथ। से फॉर एग्जांपल पहला 3-4 महीना आप 10% 10% 10% दे रहे हो एंड फोर्थ मंथ सडनली आपका क्रेडिट बहुत ज्यादा आ गया, तो क्या फोर्थ मंथ भी आपको 1% देना पड़ेगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, यू हैव टू चेक क्यूमुलेटिवली, आपको हमेशा क्यूमुलेटिवली 1% का कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा कि मान लो 6 मंथ्स तक 6 महीना का जो भी मेरी आउटपुट टैक्स है वो 6 महीना का आउटपुट टैक्स का 1% मेरा कम से कम कैश में होना चाहिए, फिर 7th 1 to 7, फिर 8 1 to 8, फिर 9 1 to 9, फिर 10 1 to 10, दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई द 1% क्राइटेरिया। देन इफ यू आर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये था अपना रूल 86B, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। ब्लॉक्ड क्रेडिट्स 17 सबसेक्शन 5 विल बी गिवन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि दीज आर द क्रेडिट्स, दीज आर द इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स व्हिच इज बॉट बाय अ पर्सन, डिटरमाइन द अलाउबिलिटी ऑफ क्रेडिट और डिटरमाइन द टैक्स लायबिलिटी, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो सेक्शन 17 अपने स्टार्ट करें, अपोर्शनमेंट एंड ब्लॉक। तो सबसे पहले मैं ब्लॉक उठा रहा हूँ। ब्लॉक क्रेडिट में क्या डिस्कस किया गया था कि सर देयर आर फ्यू आइटम्स विच क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड, क्रेडिट विल नॉट बी अलाउड। अब गाइस जिसमें एक सिंपल थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, पर्टिकुलर आइटम का क्रेडिट अलाउड नहीं है, बट इफ आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम, मुझे इसका क्रेडिट अलाउड है। Say for example, I am into food and beverages. My business is into food and beverages. I am purchasing food and supplying food. I can take the credit. But my business is not of food and beverages. If I am purchasing food, I cannot take the credit. As simple as that. Motor vehicles, vessels and aircraft की credit disallowed है. But if I am into this business or if I am using motor vehicles, vessels, aircraft as a part of my business, मेरे को उसका credit मिलेगा। तो लॉजिकल चीज आप याद रखिएगा। वन मोर थिंग, गवर्नमेंट हैज मेड अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अपॉन द एम्प्लॉयर दैट यू हैव टू प्रोवाइड दिस टू द एम्प्लॉय, तो वो एम्प्लॉयर को उसका क्रेडिट मिलेगा बिकॉज दिस इज अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन विच इज इम्पोज्ड बाय द लॉ दैट यू हैव टू गिव दिस टू द एम्प्लॉय, तो उसका टैक्स बेनिफिट भी एम्प्लॉयर को मिलेगा, दैट इज आईटीसी भी उसको मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप याद रखिएगा व्हेन वी आर स्टडीइंग 17 सबसेक्शन 5। सबसे पहले आता है मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स के लिए याद रखना, मोटर व्हीकल्स गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए फुल्ली अलाउड है, बट मोटर व्हीकल्स पर्सन ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 पर्सन तक है इंक्लूडिंग ड्राइवर, उसका क्रेडिट आपको अलाउड नहीं है।
लेकिन अगर आप 3 पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग दिस मोटर व्हीकल फॉर 3 फॉलोइंग पर्पसेस, से फॉर एग्जांपल यू आर सप्लाइंग मोटर व्हीकल्स, आपका ये बिजनेस है, या यू आर यूजिंग इट मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, या यू आर बेसिकली यूजिंग द मोटर व्हीकल्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग और ड्राइविंग सच मोटर व्हीकल्स, तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, वरना आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब ट्रांसपोर्ट अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तब तो मैटर गेट्स ओवर, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। 13 सीटिंग तक है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन इन 3 पर्पस के लिए किया तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा सर। ठीक है। सेम वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप उसको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रेनिंग, ड्राइविंग, फर्दर सप्लाई, आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा सर। ठीक है। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट मिल जाएगा। जनरल इंश्योरेंस, सर्विस, रिपेयर, मेंटेनेंस की सर्विसेज दी जा रही है फॉर मोटर व्हीकल, फॉर मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, जिसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते। आप इनका रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, इंश्योरेंस, ये सब का भी क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मोटर व्हीकल, वेसल्स, एयरक्राफ्ट, यू आर यूजिंग इट फॉर द सेम पर्पस फॉर विच द क्रेडिट इज अलाउड, फॉर इन दैट सिचुएशन यू विल बी गेटिंग द क्रेडिट ऑफ इंश्योरेंस, रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग, आपको सबका क्रेडिट मिल जाएगा सर। ठीक है। Then if you are a manufacturer of this motor vehicles, vessels and aircraft, then also you will be getting the credit of all this insurance, repair, maintenance, servicing, आपको सबका credit मिल जाएगा सर। ठीक है। फूड बेवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक, हेल्थ सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मोटर व्हीकल्स को खरीदा नहीं, आपने मोटर व्हीकल्स को लीज पे ले लिया, हायर पे ले लिया, रेंट पे ले लिया, या वेसल्स को लीज पे ले लिया, रेंट पे ले लिया, हायर पे ले लिया, व्हीकल को ले लिया, या एयरक्राफ्ट को ले लिया, जिस पे क्रेडिट नॉर्मली अलाउड नहीं होता, अगर आप अदर देन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करते तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करो, से फॉर एग्जांपल मेरा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है एंड आई एम टेकिंग मोटर व्हीकल्स ऑन लीज, आई विल बी गेटिंग द क्रेडिट, आई विल बी गेटिंग द क्रेडिट। या फिर मैं कोई ऐसा मोटर व्हीकल लीज पे ले रहा हूं जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज्यादा, आई विल बी गेटिंग द क्रेडिट, मेरे को उसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली उसका क्रेडिट मिल जाएगा तो उसका क्रेडिट यहां पर भी मिलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? तो लीज पे लीजिए, हायर पे लीजिए और रेंट पे लीजिए, अगर आप उस स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ले रहे हैं तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट सिंपल है बेटा, इसी सिचुएशन में इफ द इनवर्ट सप्लाई ऑफ सच गुड्स इज यूज्ड बाय मी as a is used by me for making outward taxable supply of the same category, यानी मोटर व्हीकल खरीदा, मोटर व्हीकल बेचा, वेसल खरीदा, वेसल बेचा, फूड एंड बेवरेजेस खरीदा, फूड एंड बेवरेजेस बेचा, केटरिंग सर्विसेज लेके केटरिंग सर्विसेज दिया, ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज का ट्रेनिंग लेके ब्यूटी ट्रीटमेंट सर्विसेज दिया। क्लियर है? तो ये सारे इनवर्ट सप्लाईज अगर आप यूज कर रहे हो टू प्रोवाइड सेम एलिमेंट ऑफ अ टैक्सेबल सप्लाई एज अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई, तो दिस विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। एंड सिमिलरली अगर गवर्नमेंट भी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, गवर्नमेंट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, तो उसका भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है क्लब मेंबरशिप फीस, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, इनके जितने भी सर्विसेज आपको उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट अगर ऑब्लिगेटरी कर देता है तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रैवल बेनिफिट्स एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज लाइक लीव ट्रैवल कंसेशन और होम ट्रैवल कंसेशन का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। गवर्नमेंट हैज मेड इट ऑब्लिगेटरी तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूव प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन याद रखिएगा, समथिंग विच इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इफ इट इज डेबिटेड टू पीएनएल आपको क्रेडिट मिल जाएगा, इट इज नॉट कंस्ट्रक्शन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर कंस्ट्रक्शन के लिए दिया जा रहा है फॉर एन इमूव प्रॉपर्टी, इमूव प्रॉपर्टी में अगर आपका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है दैट इज लैंड और बिल्डिंग, तो उसके लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया जा रहा है तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया जा रहा है, फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के लिए क्रेडिट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया जा रहा है तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन है, प्लांट एंड मशीनरी के डेफिनेशन में पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस नहीं आता है, सिविल स्ट्रक्चर नहीं आता है, बट स्ट्रक्चरल सपोर्ट्स व्हिच इज एक्चुअली सपोर्टिंग द स्टैंड ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, वो प्लांट एंड मशीनरी माना जाता है। Sir, inward supplies by a taxable person for construction of an immovable property of goods and services, whether on his own account or not, whether or not it is in the course of furtherance of business, उसका क्रेडिट मिल जाता है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, यहाँ पे आप गुड्स अलग से परचेज कर रहे हो, सर्विसेज आप अलग से रिसीव कर रहे हो, बट अगर आप प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए ले रहे हो इनवर्ट सप्लाईज तो आपको उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है सर। इनवर्ट सप्लाई जिस पे कॉम्पोजिशन स्कीम में आपने टैक्स भरा है तो डेफिनेटली आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, मतलब बेसिकली अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम वाले पर्सन से गुड्स खरीदा आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एनआरटीपी को
गुड्स मिला है, एक्सेप्ट वेयर गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। एनआरटीपी का सारे इनवर्ट सप्लाईज पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो गुड्स इंपोर्ट किया तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अगर गुड्स एंड सर्विसेज आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉय, रिटर्न ऑफ का क्रेडिट नहीं मिलेगा। गिफ्ट, फ्री सैंपल्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्सेस पेड एज अ रिजल्ट ऑफ यू नो फ्रॉड और विलफुल मिसस्टेटमेंट, डिटेंशन ऑफ गुड्स, जो भी आपने डिमांड एंड रिकवरी में टैक्स दिया आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बेटा सीबीएसई का सर्कुलर आता है फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स। सिंपल है, अगर आपने गिफ्ट सप्लाई किया, गिफ्ट्स दिया है एंड इफ इट इज नॉट अ सप्लाई तो उसके ऊपर क्रेडिट भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गिफ्ट्स को शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई मान लिया गया तो आपको उसको क्रेडिट लेना पड़ेगा। बाई वन गेट वन फ्री ऑफर, बाई वन गेट वन फ्री ऑफर, इट इज क्लैरिफाइड दैट कि जो भी बाई वन गेट वन फ्री ऑफर में आपको सप्लाई किया जा रहा है तो जो सप्लायर है उसको सब चीज का इनपुट मिलेगा, बिकॉज इन दैट सिचुएशन बोथ द आइटम्स आर सप्लाइड फॉर अ सिंगल प्राइस। ठीक है, both the supplies are supplied for a single price. Next comes 17 subsection 1, 17 subsection 2 and 17 subsection 3, apportionment of input tax credit. 17 subsection 1 बात करता है goods and services partly used for business purposes and partly used for other business purposes, यानी other than business purposes। तो both goods and services are commonly used for business purpose and non business purpose, तो जो भी आपका common इनपुट्स है जो एग्जैक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू बिजनेस पर्पस, खाली उतना ही क्रेडिट मिलेगा। जो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए एट्रीब्यूटेबल है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली 17 सबसेक्शन 2 बात करता है गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड पार्टली फॉर टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, बी केयरफुल, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई, यानी कुछ आपने एग्जाम सप्लाई किया, कुछ आप टैक्सेबल सप्लाई किया और जीरो रेटेड किए, तो टैक्सेबल जीरो रेटेड का आपको क्रेडिट मिल जाएगा बट एग्जाम सप्लाई का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा सर, ये बहुत ही क्लियर है। Now, in this regard, 17 subsection 3 was introduced to expand the scope of exempt supply, because जितना exempt supply के लिए आप input attribute करोगे उतना ज़्यादा आपका ITC reversal होगा। तो exempt supply का definition अपने को पता है, exempt supply means what? It means nil rated supply, it means supplies which is wholly exempt under GST, it also means any tax, any supplies which is a non-taxable supply। ये तीनों supply मिलके क्या होता है? exempt supply होता है। But over and above that, exempt supply का scope को widen किया गया। Even reverse charge supplies को exempt supply माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। इवन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जो मनी भी नहीं, जो गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, इसको भी आप exempt सप्लाई मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एलोकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1% ऑफ द सेल वैल्यू। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग जो पैरा 5 शेड्यूल 3 के स्कोप में सप्लाई में नहीं था उसको भी आप exempt सप्लाई मानेंगे, दैट इज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सेल ऑफ लैंड का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, सेल ऑफ बिल्डिंग का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी। लेकिन अगर शेड्यूल 2 में आ गया वो कि आप कंस्ट्रक्शन सर्विस ले रहे हो, सीसी के पहले आपने सर्विस दिया, तो वो सर आपका एग्जाम सप्लाई नहीं माना जाएगा। मोर ओवर वॉट एवर वैल्यूज विच आई एम टेकिंग आई विल बी नॉट इंक्लूडिंग द ओल्ड टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, ये सारे टैक्सेस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, एग्जाम सप्लाई के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। सिक्योरिटी का मैंने बोल दिया 1%, लैंड बिल्डिंग का मैंने बोल दिया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। रूल 42 43 गाइज आपको क्लासेस में बहुत बार कराया गया है, तो उसको अच्छे से करके जाइएगा कि रूल 42 में क्या बेसिस ऑफ एलोकेशन होता है, रूल 43 में क्या एलोकेशन होता है। रूल 42 में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, टी में से टोटल टी में से T1 T2 T3 बचा C1, C1 में से T4 बचा C2, C2 में से D1 D2 बचा C3। अल्टीमेटली क्रेडिट आपको क्या चीज का मिलता है? T4 का मिलता है और C3 का मिलता है। बाकी T1 क्रेडिट नहीं मिलता, T2 क्रेडिट नहीं मिलता, T3 क्रेडिट नहीं मिलता, T4 का क्रेडिट आप ले लेते हो और C3 जो है वो आपका बचा हुआ क्रेडिट होता है, वो भी आपको मिल जाता है। D1 D2 भी आपको रिवर्स करनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम टर्नओवर। ठीक है, तो T1 क्या था, अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद T1 क्या था, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। T2 क्या था, एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। और T3 क्या था, ब्लॉक क्रेडिट्स। T3 क्या था, ब्लॉक क्रेडिट्स। मैंने बॉटल वाला एग्जांपल देके आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि हाउ डू यू एक्चुअली एसर्टेन कॉमन क्रेडिट्स का एट्रीब्यूटेशन इन रूल 42। फिर जो बच गया आपका C1 में से आप एट्रीब्यूटेबल जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए वो आप T4 हटा दोगे, फिर आपका बचा C2। नाउ यू विल एक्चुअली स्टार्ट एलोकेटिंग D1 एंड D2। D1 D2 क्या हुआ, जो आपकी कॉमन क्रेडिट्स है उसको इनटू E बाई F, E क्या हुआ एग्जाम टर्नओवर, F क्या हुआ टोटल टर्नओवर, और D2 क्या हुआ C2 का 5%। अगर आपकी कुछ कॉमन क्रेडिट्स नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी एट्रीब्यूट हुआ है तो 5% तक आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। नाउ जो कॉमन क्रेडिट में से आपका अवेलेबल बचता है विच यू कैन टेक, which you don't have to basically reverse, तो in that situation C3 is equal to C2 minus
D1 प्लस D2, ये आपकी कॉमन क्रेडिट बच जाती है। तो ऐसे करके गाइस रूल 42 42 मैंने बता दिया, 43 भी लगभग ऐसा ही है, आप प्लीज रिवाइज कर लेना, अच्छे से मैंने आपको पढ़ा दिया था। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट 17 सबसेक्शन 4, ऑप्शनल मेथड हैव बीन गिवन टू बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ऑब्वियसली यू नो बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सप्लाई एग्जेम्प्ट भी होते हैं, टैक्सेबल भी होते हैं। तो इन दैट सिचुएशन अगेन दे हैव टू आइदर फॉलो रूल 42 43 or as per 17 subsection 4 an option has been given to them that they can take 50% of the credit and rest 50% can be lapsed. They can avail 50% of the total eligible credit और balance 50% वो lapse कर सकते हैं। अब यहाँ पर important condition ये है कि सर when the banks are actually receiving supplies from their own registered persons having the same PAN, in that situation 100% का criteria applicable नहीं होगा वहाँ पे, I mean 50% का criteria applicable नहीं होगा वहाँ पे 100% ITC आपको मिल जाएगा। ये आप याद रखिएगा, 100% आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा बात आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ब्लॉक क्रेडिट्स मतलब ब्लॉक्ड है, उसका 50% आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट्स इज नेवर अलाउड इन 17 subsection 4 also. Option once you have taken for this particular under this section, you cannot change in the remaining part of the financial year. ये चीज आप 17.4 में याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 18, क्रेडिट अवेल्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्रेडिट अवेल्ड इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की स्पेशल केसेस में आप क्रेडिट कब ले सकते हो, तो चार सिचुएशन मैंने आपको पढ़ाया था। फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाइड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, स्विच ओवर फ्रॉम रेगुलर कॉम्पोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम एंड एग्जाम स्टेटस टू टैक्स पेइंग स्टेटस। चारों केसेस में आपको क्रेडिट मिलेगा। प्लीज याद रखिएगा पहला दो केसेस में, पहला दो केस कौन सा हुआ, फ्रेश रजिस्ट्रेशन, और दूसरा कौन सा हुआ, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन। ये दोनों सिचुएशन में आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा कैपिटल गुड्स का, आपको खाली क्लोजिंग स्टॉक इनपुट्स रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का क्रेडिट मिलेगा। बट लास्ट के दो सिचुएशन में जब आप एग्जाम से टैक्सेबल स्टेटस में आए, जब आप नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम से नॉर्मल स्कीम में, यू विल आल्सो गेट द क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स बट ऑब्वियसली नॉट इंटायर credit. You have to reduce -5% per quarter or part thereof from the date of invoice till the date of switchover or till the date of supply becoming exempt. तो उस पीरियड का जो इनएलिजिबल पीरियड है उसका -5% पर क्वार्टर आपको करना पड़ेगा, और जो बैलेंस पीरियड बैलेंस क्रेडिट है वही आपको कैपिटल गुड्स के केस में मिलेगा। क्लियर है गाइस? तो ये क्रेडिट आपको मिल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर और कैपिटल गुड्स के ऊपर। अब इसमें कुछ एडेड कंडीशंस क्या है कि सर ये जो क्रेडिट आप जो भी ले रहे हो इस सेक्शन में विद इन 1 ईयर लेना पड़ेगा। मतलब अगर आपका 1 साल की पुराना कोई इनवॉइस है तो उसका क्रेडिट आप इस सेक्शन में नहीं ले सकते, आप उसी का क्रेडिट ले सकते हैं जो विद इन 1 ईयर है, मतलब 1 साल के पहले का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट हैज टू सर्टिफाई इफ द वैल्यू ऑफ द क्लेम हैज एक्सीडिंग 2 लाख, तो आपको यहाँ पे सर्टिफाई करवाना पड़ेगा CACMA से। दूसरा आपको ITC 1 में ये डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टेकिंग द क्लेम। तो ये कुछ एड ऑन कंडीशंस है जो हमें सेक्शन 18 में ध्यान रखना पड़ेगा व्हेन वी आर अवेलिंग द क्रेडिट इन सच सिचुएशन। अब अपने आते बेटा सेक्शन 18 के बाद फिर आता है रिवर्सल, कि आपका रिवर्सल होगा 3 सिचुएशन में। इसी का उल्टा, रजिस्ट्रेशन लिया तो मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन पे आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। दूसरा, एग्जाम स्टेटस से टैक्स पेइंग स्टेटस में आप क्रेडिट ले रहे थे, अब आप टैक्स पेइंग स्टेटस से एग्जाम स्टेटस में क्रेडिट रिवर्स करोगे। तीसरा, आप पहले नॉर्मल स्कीम से आप कॉम्पोजिशन स्कीम नॉर्मल स्कीम में आ रहे थे तो आप क्रेडिट ले रहे थे, अब आप कॉम्पोजिशन नॉर्मल से कॉम्पोजिशन में वापस जाओगे तो आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिवर्स द क्रेडिट। अब क्रेडिट रिवर्स करने का क्या सिस्टम होता है, दो चीज होता है, एक इनवॉइसेस, एक इनपुट्स का और एक कैपिटल गुड्स का। इनपुट्स का तो बड़ा सिंपल है, इनवॉइस बेसिस पे आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। जो भी क्लोजिंग स्टॉक आपका बचा है आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस निकाल लीजिए, उस इनवॉइसेस के बेसिस पे प्रोपोर्शनेटली आप क्रेडिट रिवर्स कर दीजिए। सिचुएशन, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो यू हैव टू एसरटेन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू बेसिकली कंपोजिशन में अगर आप जाना चाह रहे हो या फिर आपका सप्लाई एग्जेम्प्ट हो गया, तो जब भी आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस दिन का प्रीवेलिंग मार्केट प्राइस लेना पड़ेगा विच हैज टू बी सर्टिफाइड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, और आपको क्रेडिट रिवर्स करनी पड़ेगी। ये तो बात हुई स्टॉक की। बट व्हाट अबाउट कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स गाइस प्रो रेटा बेसिस पे आप रिवर्स करते हो। से फॉर एग्जांपल आपका कैप गुड्स में GST में इसका 5 इयर्स का यूजफुल लाइफ माना जाता है, मतलब 60 मंथ्स। आपने पहले आप उसको रजिस्ट्रेशन पीरियड में ले रहे थे, उसका क्रेडिट आप अच्छे से ले लिए, या फिर आप उसको पहले कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं, आप नॉर्मल स्कीम में उसको यूज कर रहे थे, आप उसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहे थे, तो तब तक का पीरियड जब वो उस पीरियड में था
उसका बैलेंस 60 मंथ्स माइनस दैट पीरियड, जो रिमेनिंग पीरियड बचता है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बचता है, आपको उतना रिवर्सल करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 10 मंथ्स बचता है, तो आपको जो भी क्रेडिट है डिवाइड बाय 60 इंटू 10 मंथ्स का आपको रिवर्सल करना पड़ेगा। कुछ याद आ रहा है आपको, प्रो रेटा बेसिस पे आप क्रेडिट रिवर्स कर दोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स या प्लांट एंड मशीनरी ऑन विच क्रेडिट हैज बीन टेकन। अगर आपने कैपिटल गुड्स बेच दिया या आपने अगर प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया जिसका क्रेडिट आपने लिया है, तो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई तुम्हें जो भी क्रेडिट है वो तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे रिवर्स करोगे, टैक्स कैसे पे करोगे? हायर ऑफ द फॉलोइंग, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो भी इस वैल्यू में तुमने ट्रांजैक्शन वैल्यू में तुमने सप्लाई किया उसका टैक्स, या तुम टैक्स या जो भी क्रेडिट तुमने लिया है, जो भी क्रेडिट तुमने लिया है उसका 5% पर क्वार्टर। ये 5% पर क्वार्टर क्या है गाइस? जो भी क्रेडिट तुमने लिया है उसका 5% पर क्वार्टर, ये तुमको माइनस करके नेट वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब ये 5% पर क्वार्टर पता है क्या? एलिजिबल पीरियड, क्योंकि पहले का पीरियड तो मैं एलिजिबल था। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैपिटल गुड जब तक बिका नहीं तब तक तो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ, जब वो बिका उसके बाद का क्रेडिट मैं नहीं ले सकता। तो इसलिए आईटीसी माइनस क्या लिया गया, क्योंकि आईटीसी को मेरे को 60 मंथ्स में स्प्रेड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया, 5% पर क्वार्टर को यहाँ पे माइनस कर दिया। -5% पर क्वार्टर के बाद जो नेट आईटीसी आता है उसको कंपेयर किया टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू से, विच एवर इज हायर विल बी माई फाइनल टैक्स जो मुझे पे करना पड़ेगा ऑन द सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। सिमिलरली ट्रांसफर ऑफ आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन की, जैसे रजिस्टर्ड पर्सन का चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहां पे भी आईटीसी ट्रांसफर करनी पड़ती है। तो जी आईटीसी 02 एंड 02A ये दो फॉर्म है जिसमें आप आईटीसी ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एमैल्गमेशन हो रहा है, सेल ऑफ बिजनेस हो रहा है, डीमर्जर हो रहा है, आईटीसी कैन बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द सीएसीएमए शुड सर्टिफाई दैट ऑल द लायबिलिटीज हैज बीन ड्यूली ट्रांसफर्ड टू द ट्रांसफरी कंपनी। तो क्रेडिट कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये शॉर्ट में मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया। ओके गाइस, ये था अपना सेक्शन नंबर 18। नाउ अपने बात करेंगे सेक्शन 19 दैट इज जॉब वर्क। नाउ अपने बात करेंगे सेक्शन 19 दैट इज जॉब वर्क। जॉब वर्क बड़ा सिंपल है कि व्हाट अबाउट द इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स व्हिच वी सेंड टू जॉब वर्क फॉर फर्दर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस। क्या input tax credit can be taken by the principal when he's sending the inputs to the job worker? The answer is yes. Kya the principal can take ITC even if the inputs was not received by him but it was directly sent to the job worker? The answer is yes. Even then he can take the input tax credit, तभी भी वो input tax credit ले सकता है even if it is directly sent to the job worker। तो यहाँ पर principal input ले सकता है without being brought into his place of business, वो input ले सकता है। Principal need not wait till the input has to be received or brought to his place of business, he can directly take the credit. Now can what is the time limit that he has to get back that inputs or cap goods to his premises? 1 year in case of inputs and 3 year in case of कैपिटल गुड्स। अभी जो 1 ईयर है ये फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है 1 ईयर बाय इफ परमिटेड बाय कमिश्नर, और ये जो 3 ईयर है ये फर्दर मैक्सिमम 2 ईयर एक्सटेंड किया जा सकता है इफ परमिटेड बाय द कमिश्नर। इस कैप यहाँ पे कैप गुड्स में मोल्ड्स डाइज जिग्स एंड फिक्सचर्स नहीं आएंगे, और यहाँ पे अगर inputs are directly sent to the job worker by the vendor, तो ये 1 year 3 year का जो टाइम लिमिट है it will be counted from the date of receipt by the input and job by the will be counted, this 1 year or 3 year will be counted from the date of receipt by the by this of this capital goods or inputs by the job worker। normally आप ये 1 year 3 year कब से कैलकुलेट करेंगे? जब से आपने इसको सेंट आउट किया है। this 1 year 3 year will be calculated from the day I have sent out this materials to the job worker। now what will be the consequences if it is not returned back within 1 year or 3 year? अगर ये 1 साल 3 साल में वापस नहीं आता तो क्या किया जाएगा? it will be deemed that जब भी मैंने सेंट आउट किया था, प्रिंसिपल ने जब भी जॉब वर्कर को सेंट आउट किया था वो एक सप्लाई था एंड उस पर जीएसटी लग जाएगा फ्रॉम दैट डेट इटसेल्फ, एंड आई विल हैव टू पे ऑल द जीएसटी लायबिलिटी विद इंटरेस्ट अगर मैंने उसको 1 साल 3 साल के अंदर वापस नहीं लाया। सब्सिक्वेंटली जॉब वर्कर जब भी रिटर्न करेगा प्रिंसिपल को आफ्टर दिस स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड, इट विल ऑल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई और उस पर जीएसटी टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज, कैन प्रिंसिपल सप्लाई द गुड्स फ्रॉम जॉब वर्कर प्रीमाइसेस? क्या प्रिंसिपल खुद जॉब वर्कर प्रीमाइसेस से सप्लाई कर सकता है? yes, principal can supply the goods from the job worker premises if principal has declared job worker's address as his additional place of business। लेकिन दो सिचुएशन में अगर जॉब वर्कर जीएसटी में रजिस्टर्ड ही है तब कोई डिक्लेयर करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है,
और अगर प्रिंसिपल एक ऐसे नोटिफाइड गुड्स में एंगेज्ड है जहां पे जॉब वर्कर का एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये एडिशनल प्लेस भी नहीं दिखाना पड़ेगा, लेकिन वरना आपको एडिशनल प्लेस दिखाना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा, जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना नहीं पड़ेगा। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर इनपुट्स एंड कैप गुड्स, कि हाउ मच इट इज सेंट, हाउ मच इट इज रिसीव्ड बैक, कितना डिलीवरी चलान इशू हुआ, एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन्ड बाय principal. Any waste and scrap generated during the job worker can be supplied by the job worker directly on payment of tax. अगर job worker registered है और job worker registered नहीं है तो principal पे करेगा if the job worker is not registered. ठीक है सर, तो ये था सेक्शन नंबर 19। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्म आता है, याद करना, जीएसटी आईटीसी 4, दैट इज बेसिकली विच हैज टू बी फाइल्ड। इसमें भी बहुत बड़ा अमेंडमेंट आया है, जिसकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उनको क्या बोलते हैं, एनुअली बेसिस पे जीएसटी आईटीसी 4 भरना पड़ेगा 25 अप्रैल ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको हाफ ईयरली बेसिस पे आईटीसी 4 भरना पड़ेगा, दैट इज 25th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द मंथ। जैसे 1 अप्रैल है टू 30th सितंबर है, तो 25th ऑफ अक्टूबर विल बी द फर्स्ट ड्यू डेट फॉर आईटीसी 4, एंड 1 अक्टूबर से 31 मार्च, ये 6 मंथ्स का 25th अप्रैल विल बी द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग आईटीसी 4। ठीक है, आईटीसी 4 का ये ड्यू डेट है। नेक्स्ट होता है बेटा आईएसडी। आईएसडी बड़ा सिंपल टॉपिक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, दे डोंट actually make any taxable supply, but they have to take compulsory registration in GST because they receive common services. They actually take common services ka they actually act as a centralized billing department, and they pay payment on the behalf of the recipients of the credit, and they actually receive invoices. So if they receive invoices, they actually receive the credits from the vendors on the behalf of the recipients. So that credit has to be distributed to the relevant recipient of the credit on the basis of the turnover in state of the respective recipients. तो ISD का responsibility होता है whatever credit they have received, they have to distribute it to the recipient of the credit. They have to distribute the eligible credit also, they have to distribute the ineligible credit also. सारा credits ISD को distribute करना पड़ता है अपने ही recipient को. ISD is basically amongst the those मतलब any division amongst one of the divisions which हैव द सेम पैन नंबर। से फॉर एग्जांपल एक कंपनी एमएनसी है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तो कोई भी एक डिपार्टमेंट को आईएसडी डिवीजन बना दिया जाता है, एंड दे हैव टू टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन, व्हिच हैव टू फाइल सेपरेट रिटर्न, सब कंप्लायंसेस उसको सेपरेटली करना पड़ता है। तो रोल एंड रेलेवेंस ऑफ आईएसडी अपने पढ़ लिए। आईएसडी का बस आप ये याद रखना कि इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं होती है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होता है, और वो किस तरीके से क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंपॉर्टेंट है। तो दो तरह के क्रेडिट होते हैं, एक होते हैं क्रेडिट रेलिवेंट टू अ स्पेसिफिक रेसिपिएंट, तो 100% ऑफ द क्रेडिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू दैट रेलिवेंट रेसिपिएंट। एक होता है कॉमन क्रेडिट्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द रेसिपिएंट्स इन द कॉमन टर्नओवर रेशियो। तो वहां पे आपको याद रखना है कि रेलिवेंट आईटीसी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रेसिपिएंट इन द रेशियो ऑफ turnover of the recipient in the all the states divided by total turnover of all the recipient to whom for the relevant period. अब ये relevant period क्या होगा? It will be last year. Last year if the units were operational in the entire year. ऑल द यूनिट्स फॉर ऑपरेशन इन द एंटायर ईयर। लेकिन अगर कोई भी एक यूनिट मान लो लास्ट ईयर में फुल्ली ऑपरेशनल नहीं था, तो उसका आपको लास्ट क्वार्टर लेना पड़ेगा, जिस मंथ में आप आईएसडी डिस्ट्रीब्यूट कर उसका लास्ट क्वार्टर का उसको टर्नओवर रेशियो लेना पड़ेगा। तो टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे आपकी क्रेडिट क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी ऑफ द रिलेवेंट पीरियड। ये चीज आप याद रखिएगा गाइस, ठीक है। बस यही था सेक्शन 20 में। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि रेसिपिएंट और आईएसडी का लोकेशन क्या है। तो गैस सुनना मेरा बात, आईएसडी अगर आईजीएसटी आईएसडी के पास अगर आईजीएसटी का इनवॉइस है तो सेम इनवॉइस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी टू द रेसिपिएंट। अगर आईजीएसटी का इनवॉइस है तो आईजीएसटी का इनवॉइस आईजीएसटी की तरह चला जाएगा। लेकिन अगर आईएसडी के पास सीजीएसटी एसजीएसटी का इनवॉइस है और आईजीएसटी मतलब आईएसडी के पास सीजीएसटी एसजीएसटी का इनवॉइस है, तो आईएसडी क्या करेगा, वही इनवॉइस अगर उसका रेसिपिएंट सेम स्टेट में है तो वो सेम सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा सेम स्टेट में। लेकिन अगर रेसिपिएंट और आईएसडी डिफरेंट स्टेट में है तो आईएसडी के पास अगर सीजीएसटी एसजीएसटी का बिल है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा एज आईजीएसटी, दैट इज टोटल ऑफ आईटीसी ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि कौन सा क्रेडिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। लास्ट में आता है
manner of recovery of credit distributed in excess. If ISD has distributed excess credit to any recipient of the credit, the excess will be recovered from the recipient itself by initiating action under demand and recovery proceedings under section 73-74, or applicable penalties will be applicable depending on the circumstances. Excess credit अगर distribute किया तो recover केवल और केवल recipient से ही किया जाएगा और ISD से नहीं किया जाएगा. तो दिस वॉज सेक्शन 21. कुछ फॉर्म्स है ITC 1 डिक्लेरेशन के लिए, फॉर्म एलिजिबिलिटी के लिए, ITC 2 डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ITC के लिए इन केस ऑफ सेल, अमेलगमेशन, डीमर्जर. ITC 2A क्या होता है? जब आप सेम एंटिटी हैज टेकन मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस इन द सेम स्टेट, देन ITC 2A के थ्रू आप ITC ट्रांसफर कर सकते हो टू सेपरेट प्लेस ऑफ बिजनेस, टू सेपरेट रजिस्ट्रेशन. ITC 3 इज फॉर रिवर्सल. अगर आप रिवर्सल करा रहे हो तो आपको ITC 3 फाइल करना पड़ेगा. और ITC 4 इज फॉर जॉब वर्क, कि जहाँ पे डिलीवरी चलान्स इशू किया जा रहा है तो आपको सारा डिलीवरी चलान अपने ITC 4 में फर्निश करना पड़ेगा, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली डिपेंडिंग ऑन योर एग्रीगेट टर्नओवर. तो गाइज ये था हमारा सॉलिड रिवीजन ऑफ ITC. आई होप यू लाइक्ड इट. और मैंने कम से कम टाइम में, मेरा ऑब्जेक्टिव है रैपिड रिवीजन, कम से कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन कराना ही मेरा पर्पस है, वरना ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिवीजन विल बी लॉस्ट. अगर कोई बच्चा अगर पढ़ के नहीं आया तो उसके लिए रिवीजन बिल्कुल भी काम का नहीं है. ये रिवीजन तभी काम का अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए तो आपको फटाफट कट 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 करके सारा टॉपिक्स रिवाइज हो गया होगा. सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है. 16, 17, 18 ये 3 सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशंस. ठीक है. So that's it. See you in the next chapter, that is returns. आज के लिए इतना ही. Thank you so much. Take care. God bless you. और अगर आपको ये classes बढ़िया लग रहा है तो do recommend this to your friends so that they can also get 100% benefit from all these classes of CMA Final IDT. Thank you so much, guys. See you very soon in the next class, that is returns. Bye bye.